सो अगर आपको आज हम एम्स का डायरेक्टर बनाए, आपके लिए टॉप 3 चेंजेस कौन से रहेंगे? पेशेंट फ्रेंडली हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एज अ पीडियाट्रिशियन, डिड यू एवर फील अ जेंडर बायस? आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। Pediatrics over radiology, at that time radiology was the money minting branch, you know. दैट वाज अ बिग डिसीजन आई फील। किस टाइप के स्टूडेंट को पीडियाट्रिक्स ब्रांच चूज करनी चाहिए? आज के जो जेआर्स हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगी? बेसिकली डीएम, इज इट अ मस्ट और नॉट? सब मस्ट तो अभी भी नहीं है। डू यू थिंक एआई विल अफेक्ट द ब्रांच? नॉट एट ऑल सर। एआई तो वही करेगा ना जो ह्यूमन कर पाएगा। Should we take a loan to take an MD pediatric seat in a private college? लोन लेके करना आई डोंट थिंक सर इज अ वेरी गुड आइडिया। How much does a pediatrician earn in our country? Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show, and today I have a very special guest. She is a professor of pediatrics at Shada University. She's an AIMS alumni, senior educator in one of the most reputed coaching institutes, and co-author of the widely used textbook Review of Pediatrics and Neonatology. She has trained at India's top institutes, won multiple national awards, published extensively, and taught thousands of PG aspirants across the country. In this episode, we are going to deep dive into the truth behind choosing pediatrics, the AIMS pressure cooker, sexism in medicine, academic politics, and whether pediatrics is financially viable in 2026. I think you have already guessed by now. Let's put our hands together and let's welcome Dr. Meenakshi Bothra, ma'am. Ma'am, welcome to the Nachiket Bhatia show. थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर टू बी हियर। Ma'am, we are going to discuss a lot of things, your journey, pediatrics, and everything. But before that, we get into it. I would like to know, when did you decide that you are meant for the world of medicine? सो सर ये था कि आई हैड बीन क्लास 5-6 के बाद से साइंस का ही बेंट ऑफ माइंड था, और ऐसा था कि कुछ तो करना ही है, आई हैव टू रियली डू समथिंग इन लाइफ। और तभी हमें पता है दो ही ऑप्शंस होते थे, आपने साइंस लिया है तो यही सुना था सबसे, या मेडिकल कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। सो आई वॉज ओके विद बोथ एक्चुअली। मतलब मुझे ऐसे नहीं था कि मेडिसिन ही करना है अर्ली ऑन इन लाइफ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स चारों ली थी। सो आई हैड टेकन मैथ्स ऑल्सो एंड आई यूज टू लव मैथ्स एक्चुअली। So, but then in +2 when I gave my entrance, so West Bengal entrance, at that time we had state entrances. So I gave that and I got a better rank in medical. So I got a rank of 90 in the medical part, and the engineering wala mein I got a rank of 350. So I was like, ki, what should I do? So my parents were like, theek hai, you have got a better rank in medical, so why not go for it? So that was how I decided. And I remember when I went, after the counseling, when I went to take admission in medical college, I asked, so can I do something with maths also along with this year? So everybody was actually laughing at that time. So that was it. And I think then probably, so it was not like कि doctor ही बनना है, so that was not there पहले से. But I wanted to do something good, and obviously in the field of science. So from there, I think I decided MBBS. So how were your days in CMC? So CMC, it was good. It was really a good experience, sir. It was like I was a day scholar. So I used to stay. I was born and brought up in Kolkata, and I joined MBBS in Medical College Kolkata, and it was very near to my house. So, and I was a very at that time very studious kind of person, जो typical day scholar होता है ना, goes to college, attends classes, comes back. So it was like that, and I was an introvert. I didn't interact much with others, and it was like mainly for the first 3 years at least, it was like this. And so you would be surprised to know I've not watched one movie in my entire MBBS. मतलब internship में आके देखा है, but through my MBBS I was like a typical ऐसे वाला था जो studious एक student होता है जो आ रहे हैं, classes कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ऐसे type का था सर. So then obviously internship was a different world altogether. So then it was like, an internship was pretty hectic at our place, and we used to learn a lot, we used to interact a lot. I made a lot of wonderful friends, and we used to, and we had obviously these 36 hours duties during internship as well. So interacted, made very good friends, and had a lovely time. तो कभी आपको रिग्रेट हुआ कि आप हॉस्टल में नहीं रहे यूजी में? सर यस, लुकिंग बैक मुझे लगता है कि प्रोबेबली दैट एक्सपोजर वाज मिसिंग, जो कि एमडी के समय पूरा हो गया. सो
आफ्टर MBBS, थ्रू MBBS ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे थ्रू आउट आई हैड स्टडीड, सो इंटर्नशिप में काम करने के बाद भी आई कुड साथ में MCQs एंड रिविजन से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट अ रैंक ऑफ लाइक, नॉट अ वेरी गुड रैंक आई वुड से, बट ऑल इंडिया जो PG एंट्रेंस होता है, आई गॉट अ रैंक ऑफ 1412. So with that, the only decent degree that I was getting in West Bengal, in the state where, because I had never stayed away from home, so that fear, anxiety was there. So the only decent thing that I was getting in Kolkata was I was getting the MS Gynae Ops at one of the very good colleges of Kolkata. So अब वही था कि डिग्री करनी है एंड मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है, यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम क्या होएगा. सो आई पिक्ड अप MS Gynae Ops एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज. सो बट जस्ट एडमिशन लिया था, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी. एंड इन द बॉटम ऑफ द हार्ट दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई नेवर वांटेड टू डू गाइनी हाउस. मतलब गाइनी हाउस तो वॉज वन थिंग कि इंटर्नशिप में आई हैड माई पोस्टिंग्स, आई डिड माई वर्क सिंसियरली, बट लेबर रूम आई ड्रेडेड इट. आई रियली, मतलब नो ऑफेंस इंटेंडेड, बट that's when I realized कि ये तो मुझे नहीं करनी. And that I think our NEET PG नहीं, all India जो PMT होती है, all India PG entrance. So the result had come I think in Feb, and May AIMS was due. So those 3 months I studied like, you know, internship भी खत्म हो गई थी. So those 3 months I studied like anything. I ate, drank, slept, and studied कि I have to crack this AIMS exam. I have to leave this gynae off seat. So by the grace of God, and thankfully I was able to secure a rank of 7 in my AIMS PG entrance exam. And when I was studying for my PG entrance, तो तब जो है ना, उस समय सीट मैट्रिक्स, एम्स में तो बहुत ही कम सीट्स होती थी, यूजी में तो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट. PG एंट्रेंस में देयर वॉज ओनली वन जनरल सीट इन पीडियाट्रिक्स. एंड व्हेन आई वाज स्टडिंग आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट वन जनरल सीट इन पीडियाट्रिक्स कि वो अगर मुझे मिल जाए. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 7th रैंक था मेरा. मेरे पहले वाले 6 लोगों ने पीडियाट्रिक्स नहीं ली, तो मुझे मिल गया सर. आपको पीडियाट्रिक्स ही लेनी थी? मतलब यस सर, मतलब थ्रू माई इंटर्नशिप, मतलब अदरवाइज फाइनल ईयर में भी यार एट आर मेडिकल कॉलेज द पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट वॉज वेरी गुड. So the teaching faculty, the professors and all were very good. The patient load was very much, and you know, I really enjoyed my posting. Matlab interacting with children, making a diagnosis, and being able to see them getting well and go home. It brought a lot of joy and satisfaction. तो ये था कि मुझे तो pediatrics ही करनी है. तो बट हाँ, मतलब एम्स PG जब क्रैक करने के बाद काउंसलिंग के पहले वाले रात को आप सोचते होते हो ना, मतलब दैट इज़ द नाइट व्हेन यू कैन नॉट स्लीप कि क्या करना है. तो ये था कि पीडियाट्रिक्स मिलेगी नहीं मिलेगी, बट मुझे रेडियोलॉजी भी मिल रही थी एम्स में. आई वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट एवरी स्पेशलिटी. तो बट पीडियाट्रिक्स मिल गया तो आई हैड नो सेकेंड थाट्स. मे बी नहीं मिलता तो आई वुड हैव गॉन विथ सम अदर मेडिकल स्पेशलिटी, बट I had no second thoughts. Pediatrics over radiology, even at that time. I mean, today radiology is Yes, threatened by sir. AI, but at that time radiology was the money minting branch, you know. So sir, that was a big decision I feel. और मुझे लुकिंग बैक समटाइम्स आई फील कि हाँ, मतलब रेडियोलॉजी ऑब्वियसली सर, मतलब एम्स से करना रेडियोलॉजी इज़ लाइक, आई मीन वन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ मैनी मेडिकोज आई वुड से. बट मुझे लगा कि शायद समवेयर डाउन द लाइन आई विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय इट. मतलब वो पेशेंट कनेक्ट जो मिलता है, जो डॉक्टर वाली फीलिंग मिलती है, आई थिंक वो प्रोबेबली आई विल नॉट गेट इवेंचुअली. एंड इवन दो येस, मतलब सेटलमेंट एंड ऑल आई बिलीव ईजी हो जाता, फाइनेंशियली मे बी थोड़ा और रिवॉर्डिंग होता, बट दैट वॉज अ चॉइस आई थिंक. एंड सम थिंग्स आर रिटन एंड दे आर बाउंड टू हैपन दैट वे. Ma'am, how were your days in AIMS? So sir, it was very very different from my MBBS experience, I would say. मतलब एम्स में आके ना मेरी what would I say, मतलब आपकी you become like totally आके पहले दिन तो क्या हुआ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ सर. कि काउंसलिंग के एक दिन पहले मैं एम्स विजिट करने गई थी. सो आई थॉट कि एक बार देख के आते हैं कि जहाँ काम करना है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कैसा है, हाउ आर द अदर डिपार्टमेंट्स. आई वेंट टू 3-4 डिपार्टमेंट्स विच आई थॉट आई वुड विजिट. सो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आई मेट वन सीनियर रेजिडेंट. सो मैंने पूछा कैसा डिपार्टमेंट है सर, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसा है. मैंने बोला यार मेडिसिन ले लो, पीडियाट्रिक्स क्यों लेनी है तुम्हें, पीडियाट्रिक्स क्या मेडिसिन मिल रही है तो ऑब्वियसली मेडिसिन ही लेना चाहिए. सो बट ऑब्वियसली मेरा तो कुछ और ही थॉट प्रोसेस था. एंड आई लव इंटरेक्टिंग विद किड्स सर. मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती मैं कि एक 17 ईयर ओल्ड एल्कोहलिक सिरोटिक पेशेंट को ठीक करके मुझे खुशी मिलेगी, या एक बच्चा जो बीमार है. I would definitely, I cannot compare those two at all.
सो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था एंड आई टुक पीडियाट्रिक्स एंड whatever it was, and I landed up in the same unit of that senior resident who had told me one day before कि pediatrics मत लेना. So but having said that, फिर हम अपने मेडिकल कॉलेज में ना ऐसे बोलते थे दादा, जैसे बंगाली में ना भैया को दादा बोलते हैं. सो यूज टू से नाम से ये दा या, तो वहाँ पे मैंने ये भैया ऐसे बोलना शुरू किया. तो दे बोला ये भैया क्या होता है. सो देन आई लर्न कि अच्छा आप डॉक्टर ये बोलो या फिर सर बोलो, वट एवर यू फील. एंड द वर्क कल्चर वॉज टोटली डिफरेंट सर. इट आई थिंक हर किसी को ना, एवरी इंडिविजुअल ड्यूरिंग MBBS चांस मिले तो तब, ड्यूरिंग PG मिले तो तब, ड्यूरिंग सीनियर रेजिडेंसी और अ शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वरशिप, वट एवर इट इज़, एवरी मेडिको आई फील एक बार एम्स में कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए सर. मतलब इट विल ओपन योर आइज एज टू वॉट आर द पोटेंशियल्स, वॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ केयर दैट वी कैन गिव, है ना. मतलब हम कितना कुछ कर सकते हैं जो हमें पता ही नहीं होता. सो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर जो डेप्थ, एक एक पेशेंट के लिए ना हम जिस डेप्थ में जाते थे, जिस डेप्थ में पढ़ते थे, उसका वर्कअप करते थे, मैनेजमेंट प्रोवाइड करते थे. सो इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर सर. मतलब इट वॉज ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल था, हेक्टिक था, ऑल दोज थिंग्स वर देयर, बट देन दैट एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट बेंच मार्क विच इट हैज़ सेट, नो सर, वो इट रिमेन्स विथ यू थ्रू योर लाइफ. I have a complaint. 90% of you have still not subscribed to the channel. So before moving forward, please go ahead, press the subscribe button and click the bell icon. थोड़ा मैम डिटेल बताओ क्या क्या अच्छा था. और सर एम्स में एक तो देखिए आप, ये है कि आपको थोड़ा सा स्क्यूड पिक्चर मिलता है, बट आपको इतने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज दैट वाज, अब तो ऐसे बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, बट तब तो एम्स दिल्ली होता था सिर्फ. सो थ्रू आपके पूरे इंडिया से पेशेंट्स, जो भी डिफिकल्ट पेशेंट्स हैं, जो डायग्नोज नहीं हो पा रहे या फिर डायग्नोसिस हो गया है बट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वैसे टाइप के आते थे. वो OPD में ना एक एक पेशेंट मोस्टली आता था इतने बड़े बड़े बंच ऑफ पेपर्स लेके. सो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर, यू नो, हिज हिस्ट्री. आप क्लिनिकली तो देखोगे ही, बट ऑल्सो यूल हैव टू सी द डॉक्यूमेंट्स, वर्कअप क्या क्या हुआ है. सो आप सिस्टिक फाइब्रोसिस फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, सिस्टिक फाइब्रोसिस वी रीड इन टेक्स्ट बुक्स, है ना. मतलब मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे पढ़ा ही था, एंड कि एक रेयर डिजीज होती है. एंड ऐसे एम्स में सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड लाइक 4 or 5 सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स एडमिटेड इन आवर वार्ड्स. सो मतलब एक्चुअली आप जो पढ़ते हो वो देखते हो कि ये सारी चीज़ें हो रही है और इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं. दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर मैनेजमेंट, दीज आर द न्यूअर थिंग्स दैट वी कैन डू. एंड मतलब तो आपको वो एक ऐसी वैरायटी देखने को मिलती है विच ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट एवरीवेयर. फिर आपके जो फैकल्टी सर, एक एक फैकल्टी जो हमारे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में देवर देयर, दे आर वर्ल्ड क्लास एमिनेंट फिगर्स. मतलब डॉक्टर VK Paul सर वॉज द HOD एट माई टाइम, डॉक्टर अशोक देवरारी, फिर डॉक्टर अरविंद बग्गा सर. मतलब दे आर स्टॉलवर्ड्स इन देयर ओन फील्ड. मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकग्नाइजेज देम. सो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि उनसे डायरेक्टली हमने सर सीखा है, पढ़ा है. एंड जो वर्क कल्चर देखने को मिलता था ना, मतलब दे वर सो इन्वॉल्व विद पेशेंट केयर कि इवन शाम को वो राउंड लेने के लिए कभी 5 बजे आ रहे, शाम में कभी 7 बजे आ रहे, रात में 9 बजे फ़ोन करके पूछ रहे, रात में 11 बजे फ़ोन करके पूछ रहे. और PICU कंसल्टेंट, आई रिमेंबर, मतलब ही वुड वांट कि वी कॉल एंड डिस्कस एंड मतलब like even 1 o'clock in the night, 3 o'clock in the night, there have been times when he has come also telephonically, तो yes, he was available 24/7. So that involvement with patient care, that training that we got, the daily academics that used to happen, sir, मतलब it you cannot imagine, मतलब इतनी wholesome एक training होती है. So that has been a really good experience. So I stayed like 7 8 years at AIIMS. पहले PG करी, senior residency करी, एक research job करी. So those were definitely some of the best times I've had. What was your typical day like as a JR1? So typical day sir, 7:30 हम वार्ड पहुंच जाते थे ऑलमोस्ट, एंड देन इवन 7 o'clock भी पहुंचना पड़ता था कई बार. इफ़ यू हैव मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स, मोर सैम्पलिंग यू हैव टू डू, बिकॉज वी हैड टू फिनिश ऑल द सैम्पलिंग, लुकिंग एट आर पेशेंट्स, सीइंग आर पेशेंट्स, एग्जामिनिंग देम, एवरीथिंग बिफोर 8 o'clock. 8:15 आवर मॉर्निंग अकेडमिक्स यूज टू स्टार्ट. 8 o'clock या 8:15 इट यूज टू स्टार्ट. तो उससे पहले आप वार्ड में जाके एग्जामिनिंग योर पेशेंट्स, डूइंग ऑल द सैम्पलिंग, एवरीथिंग हैज़ टू कंप्लीट बाय दैट. देन 8:15 से 9 o'clock अकेडमिक्स यूज टू हैपन. देन जिनकी अगर आपकी OPD डे है, यू विल गो टू द OPD. इफ इट इज़ नॉट योर OPD डे, यू विल गो बैक टू योर वार्ड, यू विल स्टार्ट राइटिंग नोट्स, यू विल डू वट एवर इज़ फॉर योर पेशेंट्स. एंड फिर इतने में कंसल्टेंट्स राउंड के लिए आ जाते थे. सो राउंड सर आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक पेशेंट पे कई बार हमें घंटा लग जाता था. सो
एम्स में व्हाट इज़ द ओपीडी लोड तो बहुत ज़्यादा होता है, बट द बेड्स एट दैट टाइम, इंडोर बेड्स वर नॉट मैनी, लाइक एक यूनिट के पास ओनली 30 बेड्स यूज टू हैपन एट दैट टाइम व्हेन आई डिड माई पीजी. सो बट एक पेशेंट पे जो आपका इन डेप्थ डिस्कशन हो रहा है सर, सो दैट विल गो लाइक 45 मिनट्स 1 आवर, और एकदम लेटेस्ट क्या चल रहा है उस फील्ड में, तो इन लोगों ने ये ट्रायल करके देखा है, मे बी फॉर दिस पेशेंट वी कैन ट्राई दिस, तो ये कहाँ से हम मंगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द एविडेंस, यूजुअली कितने दिन में रिस्पॉन्स आ जाता है. सो आई रिमेंबर एक बार तो मतलब इफ़ वन ऑफ माई को पीजीज वॉज नॉट एबल टू आंसर, तो ऐसा भी होता था कि एंड फाइल्स वाइल्स अगर आपने ठीक से रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं किया है, मतलब वो फाइल थ्रो भी कर देते हैं, मतलब ऐसे भी हुआ है. सो ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं. सो फिर आप बट देन यू लर्न स्लोली, एंड ओपीडी अगर आपकी है तो वो 2:30-3 बजे तक ओपीडी चलेगी. आप फिर उस दिन जो एडमिशन्स होते हैं, देन यू कम बैक एंड वर्कअप दोज पेशेंट्स, तो शाम तक आप वर्कअप कर रहे होते हो. इफ़ इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, देन ऑन योर एडमिशन डे टिपिकली आप 9 o'clock 10 o'clock तक, 9 PM 10 PM तक फ्री हो जाते हो. अगर आपकी ड्यूटी है तो ऑब्वियसली यू आर स्टेइंग थ्रू द नाइट, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप वापस सैम्पलिंग एंड एवरीथिंग कर रहे हो. फिर अकेडमिक्स अटेंड कर रहे हो, नींद में ऐसे होते हो फिर भी करते हो. एंड उसके बाद राउंड्स होते हैं, फिर राउंड में जो जो चीज़ें डिसाइड होती है अगेन आप वो सारा कैरी आउट करते हो, जो भी कंसल्टेशन से करते हो, एंड सारा करके बाय मे बी 2:30 और 3 o'clock आप फ्री होते हो. फिर लंच कभी मिलता है कभी नहीं मिलता. जाके सोते हो, उठते हो, फिर से आ जाते हो नेक्स्ट डे. इनफैक्ट हमारे, आई रिमेंबर हमारे एक पर्टिकुलर यूनिट में एक सर थे, ही वॉज वेरी, मतलब ही यूज टू केयर अ लॉट फॉर ऑल द रेजिडेंट्स. तो उन्होंने ये शुरू भी किया था इनफैक्ट कि उनकी यूनिट में जब हम पोस्टेड होते थे ना, तो जब हमने नाइट ड्यूटी कर ली, 24 आवर्स ड्यूटी कर ली, तो सुबह आप ओवर दे के, जो नॉन ड्यूटी बाकी रेजिडेंट्स जो नए आए हैं फ्रेश, तो उनको आप ओवर दे के चले जाओ अपने पेशेंट्स का. मतलब वो 10 o'clock यूज टू रिलीव अस, यूज टू एंश्योर कि हमने ब्रेकफास्ट किया है. सो ऐसे भी होता है सर, और हम ऐसे भी कर सकते हैं. एंड देन ऑब्वियसली हम, मोस्ट ऑफ अस यूज टू स्टे इन हॉस्टल, सो हम अपना फ्रेश होके थोड़ी देर सो के, मे बी आफ्टरनून इवनिंग में आके हम फिर से अपने पेशेंट्स देख के कुछ भी बाकी है तो वो हम करके चले जाते थे. सो दैट वाज अ वेरी गुड वे आई फील, जो सारे यूनिट्स में उस समय नहीं होता था, बट दैट इज़ डूएबल. सो हम, वी कैन मेक थिंग्स बेटर एंड मोर फ्रेंडली फॉर द रेजिडेंट्स. तो वी ऑल्सो यूज टू एन्जॉय उस यूनिट में आके ना, हमें भी बड़ा अच्छा लगता था कि सर हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं. सो वी ऑल्सो हैव टू पुट इन आवर बेस्ट टू कीप अप टू द स्टैंडर्ड्स. Ma'am, एक चीज, I mean, again, I have heard from the students in AIMS that AIMSonians and the AIMS as an organization is very apprehensive about non-AIMSonians, outsiders basically. Did you ever feel that way? सर आई फेल्ट ऑन द कॉन्ट्ररी बेसिकली. मतलब मुझे तो लगा इनफैक्ट जो एम्सोनियंस, जो हार्ड कोर एम्सोनियंस जिन्होंने MBBS भी एम से की है, PG भी की है, सीनियर रेजिडेंसी भी की है, एंड फैकल्टी भी है, वी हैड सम सच फैकल्टी इन आवर ओन वेरी डिपार्टमेंट, एंड दे वर द मोस्ट हम्बल वंस विच आई नो ऑफ. मतलब मुझे लगता है कि लोगों के मन में एक ऑरा ज़्यादा है कि वो एम्सोनियन है एंड वो ऐसे है, वो ऐसे, रादर दैन बीइंग द अदर वे राउंड. सो आई ऑनेस्टली डिड नॉट फील दैट डिफरेंस. इनफैक्ट जो some of the most sincere and humble people I came across were Amsonians. So I would vouch for the contrary, I would say. मुझे तो ऐसा नहीं लगा सर, कभी नहीं. No, never. मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था. माय क्वेश्चन वर क्या AIMSonians are apprehensive about non-AIMSonians, outsiders basically. सर इनिशियली देर मे बी एंड देर माइट, मतलब मैंने MBBS एम्स से नहीं की है, सो आई वुडंट बी एबल टू गिव यू द फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव. बट जब PG में घुसी तो इनिशियली सर एप्रीहेंशन तो होता है ना, बिकॉज मतलब थोड़ा सा उनकी जो थॉट प्रोसेस, वर्क कल्चर में देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस जो स्टेट मेडिकल कॉलेज में मैंने देखा था और जो यहाँ था. तो इनिशियली एप्रीहेंशन सबको होता है. आई थिंक आप कोई भी नई जगह में कोई भी बंदा है, यू आर एप्रीहेंसिव. नो, आप कोई नए पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो, मान लो, यू विल बी एप्रीहेंसिव हाउ ही और शी विल वर्क. तो दैट मच इतना ही था सर. मतलब वो इनिशियल एप्रीहेंशन आई थिंक हर जगह होता है. आप थोड़े दिन टेस्ट करते हो बंदे को कि ही और शी इज़ एबल टू लिव अप टू योर स्टैंडर्ड्स, वर्किंग वेल और नॉट. You provide some guidance, mentorship, but obviously that person has to rise on. So eventually you become a part of their system. मतलब ऐसे कोई discrimination I never used to face या सी कि कोई और मेरा कलीग जो एम्सोनियन है वर्सेस इफ़ आई हैव नॉट डन माई MBBS फ्रॉम एम्स. नो सर, आई डिड नॉट फील द डिफरेंस. क्या वर्क कल्चर में फ़र्क था फ्रॉम GMC टू योर AIMS?
सो सर वर्क कल्चर में ना जैसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा आई वुड से देर इज़ अ लेड बैक एटीट्यूड, मतलब ऐसे है कि सुबह हम आ रहे हैं क्लासेस के लिए, वी आर गोइंग एंड समटाइम्स क्लासेस हो रही हैं, समटाइम्स नहीं भी हो रही। देन वार्ड में भी आप जा रहे हो, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऐसे मैनेजमेंट प्लान, ऑर्गेनाइज राउंड्स ऐसे नहीं है। एंड आफ्टरनून के बाद तो यूजुअली कोई फैकल्टी हमें मतलब नहीं मिलती थी। एंड सो बट यहाँ पे एम्स में सर, एंड जो क्वालिटी आई मीन, एक तो है कि आपको फैकल्टी बिल्कुल सुबह से शाम तक आप देखोगे दे आर टोटली इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर एंड दे आर देयर ऑल द टाइम सुपरवाइजिंग यू, मेंटरिंग यू। इनफैक्ट आप जो सो कॉल्ड 9 to 5 के बाद भी आप 6 बजे भी जाते थे, हम देखते थे हमारे प्रोफेसर अपने रूम में हैं एंड कुछ उनका प्लानिंग या रिसर्च वर्क से रिलेटेड कुछ चल रहा होता था। सो वो वाली चीज़ एक तो आई थिंक द अमाउंट ऑफ टाइम एंड पैशन के साथ जो देखते थे ना सर, जैसे हमारे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में पोस्टिंग है अगर, सो द पैशन विथ विच जो दिखता था हमारे कंसल्टेंट की आंखों में, द इन्वॉल्वमेंट विथ पेशेंट्स जो होता था, द डेप्थ दैट वाज देयर फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, आई थिंक उतना हमें हमारे यूजी के टाइम पे वी डिड नॉट सी दैट। जो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड अकेडमिक्स दैट यूज टू हैपन एवरी डे, वो इट वॉज मिसिंग प्रोबेबली यूजी एंड एम्स में जो कॉलेज में डिफरेंस था। रिसर्च आई वुड से, थीसिस नहीं तो पहले तो ऐसे सुनने में आता था कि आप किसी सीनियर की थीसिस ले लो, टॉपिक देख लो एंड आपने कुछ कुछ बोल दिया है, फिर आप डेटा एनालाइज कर लो। बट सर इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर। थीसिस में कोई स्कोप ही नहीं, आपको हर एक पेशेंट रिक्रूट करना है, यू हैव टू डू वट एवर यू हैड यू नो सॉर्ट ऑफ प्लान एंड देन यू हैव टू लर्न बायोस्टैट्स का भी थोड़ा, सो दैट यू आर एबल टू कंपाइल द डेटा। एंड तब तो हमें आता भी नहीं था, लैपटॉप पहली बार खरीदा था एंड आपको प्रेजेंटेशंस भी ना आपके बनने हैं, तो वो आपके प्रेजेंटेशन को आपके आप एसआर को दिखाओगे पहले, एक फैकल्टी जो भी डेजिग्नेटेड है उनको दिखाओगे एंड देन यू विल 2 चेक से पास होने के बाद आप प्रेजेंट कर रहे हो सबके सामने। तो धीरे धीरे करते करते आप सीख जाते हो। मतलब इट वाज मतलब क्वालिटी में बहुत ही फ़र्क था सर, द ट्रेनिंग की क्वालिटी में। आई वुड से क्लिनिकल पेशेंट्स, जो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हम देख रहे हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंस वाज देयर। द टीचिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब लॉट ऑफ इन डेप्थ टीचिंग, एकेडमिक्स, रिसर्च। मतलब पहली बार मैंने देखा कि ऐसे भी मतलब इतनी शिद्दत से लोग दे आर यू नो डूइंग रिसर्च, अपना थीसिस कर रहे हैं। एंड थीसिस के अलावा फैकल्टी अपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे उनके, जिसको वो बहुत ही मतलब ऐसे वर्ल्ड क्लास ट्रायल्स हो रहे हैं, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स हो रहे हैं, पेशेंट उसमें रिक्रूट हो रहे हैं, उनको वो बिल्कुल प्रोटोकॉल से फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारा देखने को मिलता है सर। सो दैट इज़ अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। और एम्स का कैंपस वॉज सो ब्यूटीफुल। आप रात में भी जा रहे हो, नेस्कैफे था 24/7 ओपन, तो आप रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाके आप कॉफ़ी पी के आ रहे हो और फिर वापस काम पे लग जा रहे हो। सो इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड सर, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, मैं जब पल्स में जाता था मैंने उस नेस्कैफे से बहुत कॉफ़ी पी है। बिल्कुल सर, मतलब वो तो हमारा गुजारा ही उससे होता था। मेस अगर बंद हो जाए तो आपको सुबह सुबह या रात में या आंखें खोल के रखने के लिए चाहिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो नो डाउट एम्स का अमेजिंग है। आई मीन यू कैन, आई मीन अभी भी माई नानी वॉज एडमिटेड अ कपल ऑफ डेज बैक, तो जब जाता हूँ एक नई बिल्डिंग खड़ी होती है और अंदर अंदर वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा बिल्कुल है। सर, अब तो बहुत डिफरेंट हो गया है। मतलब आई विजिटेड रिसेंटली कुछ बार, तो अब तो काफ़ी ही चेंज हो गया है। मतलब लॉट ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, न्यू सेंटर्स हैव कम अप, इट कीप्स चेंजिंग। बट यही है कि इट इज़ ह्यूज एंड पेशेंट के लिए मे बी थोड़ा मुश्किल है टू नेविगेट थ्रू एंड रीच द जहाँ भी वो पहुँचना चाहते हैं। So like my nanny is what 85 or something, and you know so she had varicose veins, so उनको अब वो एक वार्ड में एडमिटेड है, अब उनका डॉपलर होना, अल्ट्रासाउंड होना वो अलग वार्ड में है, एंड ऑलरेडी लेग इंजरी एंड एवरीथिंग, उसके बाद भी उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ इतना फॉर अ स्प्रेड कर दिया है। पेशेंट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट आई वुड से, कि कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, टू गेट दैट इन्वेस्टिगेशन डन, टू सी द पेशेंट यू गो टू ओपीडी, टू गेट इन्वेस्टिगेशन डन फर्स्ट यू गो टू द बिलिंग काउंटर, देन यू गो समवेयर एल्स, देन फॉर सम अदर इन्वेस्टिगेशन यू गो समवेयर एल्स, फिर रिपोर्ट के लिए आप कहीं और जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो। सो फॉर अ पेशेंट आई थिंक डिस्चार्ज टुक लाइक 6 hours। यस सर। वो अटेंडेंट को तो रोना आ जाता है। हाँ सर, तो आई थिंक दैट कैन बी, मतलब थोड़ा और हम पेशेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। बट देन सर्विसेज आर वर्ल्ड क्लास, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर। बट यही है कि मतलब अगर आप किसी को जानते नहीं हो वहाँ, तो खुद से सारा पता कर करके जाना, एक एक चीज़ करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट सर। स्पेशली अगर आपके पास कोई सिक पेशेंट है तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब आपने कितनी बार बोला था कि रेफर टू सफदरजंग?
तो सर ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो जब पीडियाट्रिक इमरजेंसी पोस्टिंग होती थी हमारे पास सर बेड्स ही एम्स में बहुत ही लिमिटेड होते थे और ऐसे होता था डबलिंग ट्रिपलिंग ऐसे नहीं होती जैसे हमने तो जो स्टेट मेडिकल कॉलेज में ना तो एक एक बेड पे दो दो पेशेंट्स तीन तीन पेशेंट्स भी बैठा लेते थे हम मना नहीं करते थे जिसको भी ज़रूरत है एडमिशन करते थे बट एम्स में ऑब्वियसली देर इज़ अ स्टैंडर्ड फिर आप वन पेशेंट वन बेड ही होता है एंड वी यूज टू हैव वॉट 3 यूनिट्स एट दैट टाइम एंड ऑलमोस्ट 30 बेड्स पर यूनिट तो 90 बेड्स की आपकी कैपेसिटी है और ऑलरेडी आप ओपीडी से इतने सारे रेफरल वाले पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं वेटिंग लिस्ट में होते हैं तो इमरजेंसी में कोई आ रहा है और अगर उस समय आपके पास कोई बेड नहीं है तो ऑब्वियसली आप एडमिट तो नहीं कर सकते हो सर तो थैंकफुली सामने एक हॉस्पिटल था जिसमें बेड कैपेसिटी वाज मच मोर जिसमें वन पेशेंट वन बेड का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था तो नहीं चाहते हुए भी मतलब अनविलिंगली ऑल्सो वी हैड टू डू दैट सर मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट तो मिलना है कहीं अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो एडमिट तो होना है सो अगर आपको आज हम एम्स का डायरेक्टर बनाएं और आपको कुछ चेंजेस लेकर आने हो एम्स में आपके लिए टॉप 3 चेंजेस कौन से रहेंगे? सो सर अगर हम तीनों एंगल्स पे बात करें एक हम अगर बात करें क्लिनिकल की मतलब क्लिनिकल की अगर हम पेशेंट के एंगल से देखें सर तो थोड़ा हम और पेशेंट फ्रेंडली हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग हुई है ऐसा नहीं कि नहीं हुई अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है एम्स का आप ऑनलाइन पेपर बना के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी मतलब थोड़ा आई थिंक कंसोलिडेट हुआ है कि एक ही जगह सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जा रहे हैं सो थोड़ी सी बेटर स्ट्रीमलाइनिंग फॉर द पेशेंट्स कैन बी डन सो दैट एंड मतलब उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि मोर ऑफ हेल्प डेस्क ऑलरेडी हैं बट हम थोड़े और हेल्प डेस्क लगा सकते हैं या थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या नेविगेट करें एंड मे बी क्लस्टरिंग ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं कि जैसे एक पेशेंट अगर न्यूरोलॉजी ओपीडी में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको यूजुअली एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी एनसीवी ईएमजी ये सारे तो ऑलरेडी है वैसा ही इट इज़ इन द क्लोज विसिनिटी तो ऐसे हम क्लस्टरिंग ऑफ सर्विसेज कर ले थोड़ा सा और पेशेंट फ्रेंडली बना सकते हैं मे बी बट इतना लोड आता है ना सर मतलब इतने सारे पेशेंट्स आते हैं रेफ़र होके फ्रॉम एवरीवेयर कि करना मुश्किल है मतलब इट इज़ ईजियर सेड दैन डन बट आई थिंक थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी वापस कि कहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं उस एरिया में हम और ज़्यादा डॉक्टर्स लाएं और ज़्यादा ओपीडीज़ बनाएं सो दैट वी कैन केटर मोर इजीली जैसे आप कह रहे हो डिस्चार्ज में 6 घंटे लगे क्योंकि बिलिंग काउंटर पे इतनी लाइन होगी सर आपको फाइल क्लियरेंस में इतना टाइम लगेगा तो हम और काउंटर्स ओपन कर सकते हैं हम थोड़ा और उसको पेशेंट फ्रेंडली बना सकते हैं आई थिंक दैट इज़ वन पार्ट अगर हम बात करें ट्रेनिंग ऑफ पीजीज़ की तो थोड़ा सा हम रेगुलेशन ऑफ वर्क आवर्स कर सकते हैं सर मतलब इंस्टेड ऑफ 36 आवर्स वी कैन मेक इट मे बी 24 आवर्स बट देन ऑब्वियसली देन इट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ रेजिडेंट्स कि वो अपने घंटे गिने बट देन एडमिनिस्ट्रेशन कैन मेक इट मोर ईजियर मतलब हम थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं ड्यूटी आवर्स रेजिडेंट्स के लिए उनको थोड़ा सा और डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं अपने थीसिस या रिसर्च वर्क के लिए सो दैट वो उसको एज अ बर्डन ना ले एंड उतनी ही शिद्दत से करे जैसा हम करते आए हैं So I think these are some few changes that can be done, sir. But obviously it is. आप अगर जाके देखोगे you'll get lost. मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है इतने सारे पेशेंट्स हैं तो टू केटर टू एवरीवन मतलब काफ़ी ज़्यादा मैमथ टास्क है सर तो बट स्लोली आई थिंक वन पार्ट एट अ टाइम करके इट कैन बी सॉर्ट ऑफ एक मैंने बात सुनी है कि एम्स के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है एंड it goes up to the level where you know the juniors actually gets super pressurized and they tend to fall out. Is that part true? सर आप ये बताओ पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती मैं मान रहा हूँ पॉलिटिक्स हर जगह होती है सर टू सम एक्सटेंट है ना मतलब हर जगह थोड़ी सी फेवरेटिज्म थोड़ा सा बायस में भी अपने अपने आपस में लोगों की टसल हर जगह होती है आप कहीं भी चले जाओ मतलब छोटे से छोटे जगह चले जाओ बड़े से बड़े जगह चले जाओ तो थोड़ी तो हर जगह होती ही है बट थैंकफुली मतलब आई नेवर मतलब बाय गॉड्स ग्रेस कभी आई डिड नॉट कम अक्रॉस ऐसा कुछ कि मतलब ऐसा इतना सिवियरिटी में मैंने नहीं देखा कि बिल्कुल जूनियर प्रेशराइज होकर छोड़ के चला जाए देयर कैन बी सेवरल रीजंस मतलब कई बार हम एट्रीब्यूट करते हैं उसको कि मे बी बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन लेफ्ट बट देयर कुड बी सम अदर रीजंस दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल्सो तो ब्लेम करना सारा उसको आई थिंक माइट नॉट बी करेक्ट बट येस हर जगह थोड़ी फेवरेटिज्म थोड़ी बायस टू सम एक्सटेंट होती है बट देन इफ़ यू आर सिंसियर इफ़ यू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आप भी हेल्प कर रहे हो लोगों को लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं सो अल्टीमेटली आई थिंक मे बी आपको थोड़े बम्प्स आएंगे रोड ब्लॉक्स आएंगे बट यू कैन सेल थ्रू As like being a female, did you ever feel a gender bias
और मे बी एज अ पीडियाट्रिशियन यू वर टोल्ड कि ठीक है आप तो एक फीमेल हो तो यू आर ऑलरेडी गुड फॉर इट, कभी आपको ऐसा फील हुआ? सो फीमेल्स वैसे तो दे आर गुड विद चिल्ड्रन, मतलब अब ऑब्वियसली आप मतलब आप यू रेज चिल्ड्रन, और जितना टाइम मतलब एक मदर अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती है, ऑब्वियसली मतलब आई एम श्योर बाकी लोग उतना नहीं कर पाते. सो फीमेल्स आर गुड विद चिल्ड्रन यूजुअली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. तो मे बी मतलब दैट इनहेरेंट क्वालिटी के मतलब जो भी वो पैशन लव भी आया, मे बी बिकॉज आई वॉज अ फीमेल. बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे ऐसे कुछ बायस नहीं फेस करने को मिला. बट देन रेसिडेंसी में के समय कई बार ऐसे होता था कि जैसे आप सीनियर रेजिडेंट भी हो ना, तो कई बार पहले होता था, अब नहीं होता, बट लोग आपको कंसिडर करते सिस्टर ये कर दो. मतलब वार्ड में ना आपको दे विल नॉट लुक एट यू एज अ डॉक्टर, आप सीनियर रेजिडेंट हो, बट फिर भी दे विल बी लाइक समटाइम्स इट यूज टू हैपन, मतलब हमेशा नहीं बट वंस इन अ वाइल ऐसे हुआ है कि अच्छा डॉक्टर कब आएंगे, हाँ सिस्टर आप ये कर दो. सो वो थोड़ी सी ना लोगों के मन में जो आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बट थैंकफुली आई हैव नेवर बीन मतलब वैसा कुछ मेजर कभी फेस नहीं करना पड़ा. इनफैक्ट मतलब फीमेल्स आप देखोगे पीडियाट्रिक्स गाइनी ऑप्स के बाद आई थिंक पीडियाट्रिक्स इज़ द नेक्स्ट स्पेशलिटी जहाँ पे फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा है इन नंबर में भी मेल्स से ज़्यादा. इनफैक्ट हमारे जो रेजिडेंट्स भी आते हैं यूजुअली, जैसे नए रेजिडेंट्स आते हैं, फीमेल्स आर मोर देन 50% ऑफ दैट. सो आई थिंक दे आर प्रिटी गुड विद इट. ऐसा नहीं कि मेल पीडियाट्रिशियंस अच्छे नहीं होते, बट देन येस फीमेल्स आर गुड विद इट. एंड थोड़ा सा मे बी होता है इंडिया में ऐसे पेट्रियार्कियल पैटर्न थोड़ा सा है मे बी, बट देन इफ़ योर वर्क इज़ गुड इट विल स्पीक फॉर इट सेल्फ सर. फिर आपको कुछ मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक नहीं दैट्स द face करना फाउंडेशन पड़ता. यू ले ऑन कि आपका काम तो अच्छा होना ही चाहिए. मैम आप आफ्टर एम्स आपकी जर्नी कैसे रही? सो सर एम्स में मैंने पीजी करी, फिर सीनियर रेजिडेंसी भी करी, देन आई डिड अ रिसर्च जॉब, एंड देन सर सीनियर रेजिडेंसी के समय आई गॉट मैरिड. बट इतनी हेक्टिक होती थी ना पीजी और सीनियर रेजिडेंसी कि आप ना मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ हैविंग अ बेबी एट दैट टाइम. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई सीनियर रेजिडेंसी आई हैड माई फर्स्ट बेबी डॉटर. सो आई टुक अ ब्रेक एट दैट टाइम सर. सो फॉर 9 months और सो आई वॉज इन बिटवीन जॉब्स. मतलब मैंने उस समय conscious decision not to join anywhere, and I enjoyed the childhood of my first baby. And then sir I joined, there is a autonomous institute, so I love teaching sir. मतलब मेरे को था कि मुझे तो टीचिंग फील्ड में रहना है, जहाँ पे ऑब्वियसली टीचिंग, बाय टीचिंग आई वुड मीन अ मेडिकल कॉलेज जो क्लिनिकल टीचिंग रिसर्च आपको तीनों अपॉर्चुनिटीज़ दे. मतलब प्योर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में कभी भी मतलब मेरा जाने का मन नहीं था. सो देयर वाज दिस न्यू ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का विच हैड ओपन, तो आई वाज सेलेक्टेड वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी. सो आई जॉइंड देयर, आई वर्क देयर फॉर 3.5 years और सो. फिर यूपीएससी में मेरा हो गया तो आई जॉइंड मैमसी एज अ फैकल्टी ऑल्सो. सो वो भी एक अंदर से देखने को मिला. सो एंड सो वहाँ पे भी अ गुड 3.5 years आई वाज देयर. एंड चलो मैमसी और एम्स सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या डिफरेंस है आपस में? सर दोनों ही टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है कंट्री के, है ना. सो दोनों में ही आई वुड से पेशेंट लोड इतना सारा है ना, और केयर भी आई वुड से, टीचिंग पार्ट भी आई वुड से वी हैव वेरी गुड सेट ऑफ फैकल्टी इवन एट मैमसी. सो टीचिंग प्रोग्राम वाइज ऑल्सो आई फील इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एम्स, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सर हम बेटर कर सकते हैं. मतलब आप अगर मैमसी जाके देखोगे सर तो वहाँ पे अभी भी ऐसे है कि पुराने से वार्ड्स हैं, एक एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज़ भी कई बार है. कई बार तो ऐसा होता है फ्लोर पे भी पेशेंट हमें लिटाने पड़ रहे हैं. सो और वेंटिलेटर्स उतने नहीं हैं तो हमें एम्बू पे पेशेंट है फॉर डेज टुगेदर. सो वो सारा सर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हम मतलब काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट अप कर सकते हैं. मैम प्रवीण सर से मुलाकात कब हुई आपकी? सो सर मी एंड प्रवीण वी वर यूजी बैचमेट्स. Okay. बट जैसे कि मैंने बताया मैं यूजी में बहुत ही स्टूडियस वाली थी, जो कि ना ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अपना पढ़ाई करती थी एंड क्लासेस हो गए, फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी. लाइब्रेरी में एक कोने में वो भी हैरिसन खोल के ना यूज टू सी हिम कि वो बैठा है पढ़ रहा है, एंड थोड़ी बातचीत होती थी हमारी, हाय हेलो ऐसे टाइप्स, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं. ही ऑन द कॉन्ट्री यूज टू गो टू मूवी एवरी वीकेंड और एवरी अदर वीकेंड, हॉस्टल में जैसे लोग करते हैं. सो वी वर ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे बैचमेट्स, सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप भी निकल गई. एंड देन आई केम टू एम्स. मेरा जब पीडियाट्रिक्स में आई ज्वाइन, प्रवीण ऑल्सो केम टू एम्स. इनिशियली ही हैड ज्वाइन नॉन अकैड JRship इन न्यूरो सर्जरी. सो वी मेट अगेन एट दैट टाइम.
बट देन अगेन फिर ही हैड बीन सेलेक्टेड इन UPSC के थ्रू हो गया था एंड रांची में ही हैड गॉट अ पोजीशन, सो ही वेंट टू रांची एंड तब तक भी वी वर लाइक ऐसे कुछ था नहीं हमारा. सो अगेन बाय द स्ट्रोक ऑफ लक देन एम्स की जो नेक्स्ट वाली काउंसलिंग हुई उसमें प्रवीण got a seat at AIMS and he came back to AIMS, and that was the time when we started seeing each other, and maybe we had that maybe a soft corner and a good place and heart for each other पहले से ही, but then वो during our PG residency at AIMS when we were together, that is the time then we realized that maybe we are meant for each other. As a medico family, as a medico couple, how do you manage each other basically? क्योंकि it's both की आप दोनों की hectic jobs and everything. So how do you manage? Initial struggles क्या रही थी आपकी? सो सर इनिशियली जैसे मैंने बताया ना, एम्स में हम दोनों ने ही एम्स से करी है रेजिडेंसी, सो बहुत ही हेक्टिक होता था. सो द ओनली टाइम वी यूज़ टू गेट वाज कि हम शाम में मे बी जिस दिन नॉन ड्यूटी डे है तो हम साथ में डिनर बना रहे हैं. हॉस्टल में रहते थे हम एम्स में सर. इनिशियली तो सिंगल रूम में ही रहते थे, बाद में मैरिड अकोमोडेशन मिल गया था जो कि थोड़ा छोटा एक 1 BHK टाइप होता है, मतलब जिसमें किचन एंड ऑल होता है. तो हम साथ में कुक करते थे एंड अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाते थे, एंड बहुत ज़्यादा टाइम तो ऑब्वियसली नहीं मिलता था. सो बीच बीच में छुट्टी लेके छोटे छोटे ट्रिप्स कराए, सो वो करते थे. एंड फिर PG ख़त्म होने के बाद से द रियल स्ट्रगल बिगैन सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म होने के बाद से. फिर आप अपने अपने मतलब आप देखते हो जॉब्स, एंड वंस यू हैव अ बेबी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है. सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट. मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज देव बीन रियली सपोर्टिव. इनफैक्ट अभी भी मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मेरे साथ रहते हैं. सो आपका फर्स्ट पार्ट जो है ऑब्वियसली फैमिली इज़ अ प्रायोरिटी. इफ़ दैट इज़ टेकन केयर ऑफ तो आप आराम से आप यू कैन फोकस ऑन आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर सकते हो, एंड यू कैन रियली डू वंडर्स. सो आई थिंक दैट हैविंग अ फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना येस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, मतलब जो बीच बीच में आपको स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं. जैसे इनिशियली हमने बीच में फिर ये था कि नहीं हो पा रहा था तो वी हैड पुट आवर चाइल्ड इन डे केयर फॉर सम टाइम, या फिर आपको कोई हेल्प रखनी पड़ती है. बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव हैड गुड फैमिली सपोर्ट, एंड we have been able to sail through even despite busy schedules. We have been able to work through. That's great. Yeah. Because many of our young audience has put up this question to me कि sir, okay, I'm an expectant mother, all right, and I'm facing a lot of difficulties in the working. Because क्या होता है मैम, हॉस्पिटल्स भी देख लेते हैं कि ओके जस्ट मैरिड है, एंड कई जगह पे एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यू आर जस्ट मैरिड, आर यू प्लानिंग टू हैव बेबी? बिकॉज उन्हें पता है ना कि जैसी शादी हुई अभी 3-6 महीने में प्रेग्नेंट हो गई तो देन इट्स गोइंग टू बी अ 9 month पेड मैटरनिटी लीव. तो यहाँ पे उनको बहुत सारा बायस फील होता है. तो आपके पास पूरी जर्नी में भी ऐसा फील हुआ आपको? सर सैडली मतलब इट इज़ लुक्ड अपॉन मदरहुड विच इज़ अ ब्लेसिंग, है ना. मतलब और हर एवरी फैमिली, कौन सा फैमिली नहीं चाहता कि उनके पास एक मतलब कौन से एक डॉटर या सन या ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो. एवरीबडी वांट्स दैट, राइट. तो फिर वर्क प्लेस में सर वाई लुक एट मदरहुड एज अ लाइबिलिटी? मतलब वो तो एक ब्लेसिंग है विच वी ऑल शुड, आई थिंक एज अ सोसाइटी वी ऑल वांट दैट. तो फिर वो रिक्रूटमेंट के समय वो बायस तो सर नहीं आना चाहिए ना. मतलब दैट इज़ अ physiological thing that is obviously going to happen. So अब तो सर maternity leave and everything is a norm. मतलब आप नहीं refuse कर सकते. And even मतलब I think all the females we also understand that yes, that is a part of our life and we have to devote time. But then with good support, as I said, it is not a hindrance. मतलब you can really यूज़ दैट टाइम ऑल्सो. उस समय आप अकेडमिकली मतलब आप मे बी वर्क प्लेस पर उतना ज़्यादा नहीं जा पा रहे हो, यू कैन डू सम टीचिंग, सम रिसर्च वर्क, या यू कैन राइट बुक्स. मतलब मेरे को याद है मेरी पहली प्रेगनेंसी के समय आई हैड कम अप विथ एक रिव्यू ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी जो बुक है. सो आप कर सकते हो सर, ऐसा नहीं है. एंड इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, मतलब इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड वी नीड टू सपोर्ट द फीमेल एडिक्वेटली. एंड whoever is sincere, hard working, and they themselves trust me. सर कोई नहीं चाहेगा कि हम काम पे न जाके घर पे बैठे, है ना. मतलब we would love to work and we would definitely, जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो कम नहीं होती सर. बट ये है कि दैट इज़ अ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी कैन नॉट शन ऑफ. ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें पूरी करनी है. एंड
प्रोफेशनली ऑल्सो सर, आई डोंट थिंक कि इट इज़ नॉट राइट टू लुक एट इट दैट वे कि अब मतलब मैट लीव पे चले जाएंगे और नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है सर. आई थिंक चलिए हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं मैम. मैम, व्हाट डू यू थिंक इज द करंट सिनेरियो ऑफ पीडियाट्रिशियंस इन आवर कंट्री? सर अब करंट सिनेरियो पीडियाट्रिशियंस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली नॉट फॉर पीडियाट्रिशियंस, आई वुड से सारे ही आप MBBS के देख लो कितने सीट्स हो गए हैं. मतलब सो मेनी न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव कम अप, ऐसे जैसे मतलब इतनी बड़े नंबर्स में MBBS PG सीट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज. तो डेफिनेटली सर कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग इन एवरी फील्ड. इतने सारे आपको MBBS ग्रेजुएट्स, इतने सारे स्पेशलिस्ट ऑब्वियसली है जो कि आ रहे हैं. एवरी ईयर दे आर ग्रेजुएटिंग एंड एडिंग टू द पूल. तो कंपटीशन तो है सर, आई वुड नॉट से दैट देर इज़ नो कंपटीशन, बट इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क एंड इफ़ यू कैन फाइंड योर नीश एरियाज, अगर आप चाहते हो सुपर स्पेशलाइजेशन करना, आप अगर फर्स्ट ईयर सिटी में रहना चाहते हो, ऑब्वियसली यू हैव टू डू अ सुपर स्पेशलाइजेशन और फेलोशिप इफ़ यू रियली वांट टू डू वेल एंड गेट अ रिकग्निशन. और सिर्फ MD पीडियाट्रिक्स करके भी आप आराम से सेकेंड टीयर थर्ड टीयर सिटी में सर सेटल हो सकते हो. मतलब यू कैन हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो कुछ लोग कहते हैं कि सो कॉल्ड सैचुरेशन आ गया. तो आई बिलीव अच्छे लोगों के लिए सैचुरेशन कभी नहीं आता सर. मतलब अच्छे पीडियाट्रिशियंस आप ढूंढने जाओ, मतलब उतने नहीं मिलेंगे, या अच्छे मेडिकल जनरल फिजिशियंस ढूंढने जाओ नहीं मिलते. सो इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क सर, मतलब आई थिंक यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेस. बच्चे मतलब द इंडियन पॉपुलेशन, यू कैन सी वी आर द सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. द पॉपुलेशन इज एवर राइजिंग, बर्थ रेट एंड ऑल भी काफ़ी है. तो देर विल नॉट बी एनी डर्थ ऑफ पेशेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़, आई वुड से. बट देन येस, यू विल हैव टू बी गुड एट योर वर्क. यू विल, अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर सिटी में हो, यू हैव टू हैव सम एक्स्ट्रा स्किल सेट, सम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, या जिससे कि लोग आपके पास आए. तो फर्स्ट ईयर सिटी में वो इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के दिन में. But even without that, if you want to settle in a non-capital city of any state, so I think that is still very much doable. What would be your advice कि किस टाइप के स्टूडेंट को पीडियाट्रिक्स ब्रांच चूज करनी चाहिए? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर कि दे आर बेस्ट सुटेड फॉर पीडियाट्रिक्स? सर द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ऑब्वियसली इज़ लव फॉर चिल्ड्रन. मतलब कई लोग होते हैं जो कि ना बच्चों को स्टैंड ही नहीं कर पाते देख के इरिटेट हो जाते हैं, या फिर मतलब उनको लगता है कि नहीं मैं तो मतलब दूर ही रहे, ऐसा टाइप. तो ऑब्वियसली वो तो एकदम ही भूल जाओ. मतलब यू शुड नॉट चूज पीडियाट्रिक्स, आई वुड से. द लव फॉर चिल्ड्रन and the comfort that you should be comfortable dealing with children, and you should have a lot of patience, I would say, because मतलब जैसे कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाए. एक तो बच्चा आपको कुछ बताएगा नहीं. कई बार मदर विल कम कि बच्चा ज़्यादा रो रहा है एंड द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू से एनीथिंग. वो न्यूनेट है या इन्फेंट है या छोटा बच्चा है. यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. आप पूरा थर्डली एग्जामिन करते हो, देखते हो कि अच्छा मतलब एब्डोमेन में कुछ डिस्टेंशन लग रही है, या ईयर में वो ज़्यादा ऐसे कर रहा है, या चेस्ट में कुछ फाइंडिंग्स है. सो यू विल हैव टू, इट इज़ लाइक अ मिस्ट्री. मतलब आपको यू विल हैव टू रियली हैव पेशेंस एंड गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स. तो तभी आप फिगर आउट कर पाओगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन. देन योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी रियली गुड. यू हैव टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड. एंड पीडियाट्रिक्स से ना मेरा मतलब है न्यूनेट से लेके अडोलेसेंट, तो ह्यूज एज रेंज यू कैन सी. न्यूबॉर्न है, फिर 1 ईयर तक इन्फेंट है, टॉडलर है, प्री स्कूलर है. आप उससे बात कर पाओ, इंटरेक्ट कर पाओ, एंड फिर अडोलेसेंट एज ग्रुप आ जाती है, एंड प्लस देयर पेरेंट्स. तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी लाइक रियली गुड. योर ऑब्जर्वेशन पावर्स हैव टू बी रियली गुड. योर पेशेंस should be high, and of course you should feel comfortable dealing with children. So I think those are the qualities that would be required if you. In today's era, of course, pediatrics के अंदर what are the super specialties that are currently available? सर पीडियाट्रिक्स में ऑलमोस्ट यू नेम इट एंड इट इज़ देयर. ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स के लिए अब तो सुपर स्पेशलिटीज़ हो रही है पीडियाट्रिक्स में. जैसे हमारे टाइम में ना सर, व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी, व्हेन आई डिड माय पीजी, सिर्फ 2 ही चीज़ों में DM होता था, नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी. तो मेरा भी रीज़न था उस समय DM नहीं करने का. आई फेल्ट कि DM से बहुत ही ट्यूबुलर विजन हो जाता है. आप फिर अगर नियोनेटोलॉजी देख रहे हो ना, तो फिर अब बड़ा बच्चा अगर आ जाता है, इफ़ यू लाइक वर्कड इन नियोनेटोलॉजी फॉर 4-5 years, कोर नियोनेटोलॉजी, देन यू फील अनकम्फर्टेबल सीइंग बिगर चिल्ड्रन. मतलब आपकी ना थोड़ी ट्यूबुलर विजन हो जाती है. आई फील DM डज दैट सैडली. तो तभी नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी होती थी. अब तो यू हैव पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, यू हैव पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक रिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक हिमेटोंक, जेनेटिक्स इज़ अ गुड ब्रांच. उसके बाद आप जो कर सकते हो. एंड इवन पीडियाट्रिक्स में जो खास बात है कि यू कैन इवन डू द अडल्ट DMs ऑल्सो.
तो अडल्ट वाले डीएम्स जो भी होते हैं वो सारों के लिए आप एलिजिबल होते हो, अगर आपको बाद में लगता है कि नहीं यू वांट टू डाइवर्सिफाई, आप ऐसी कोई, बिकॉज ना पीडियाट्रिक्स में आप सुपर स्पेशलिटी करने के बाद आपको इनिशियल नीश तो मिल जाता है, बट आपका जो पेशेंट पॉपुलेशन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा. जैसे अब पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी वर्सेस एडल्ट नेफ्रोलॉजी अगर आप देखो, obviously the subset of the number of patients that you will see as a pediatric nephrologist will be much lesser in number as compared to कि जो adult nephrology practice कर रहा है ना. तो उसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं. एक तो ऑब्वियसली कि वो डिजीजेज ही बच्चों में उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है जितनी अडल्ट्स में है, क्योंकि अडल्ट्स में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ड्रग्स है, सबसे किडनी इंजरी हो रही है. पीडियाट्रिक्स में तो इनहेरेंट जो उनको पहले से अगर कोई वजह से अक्यूट किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी इंजरी है, डिजीज़ है, या फिर कभी कभी तो लेस कॉमन है. पहली बात पीडियाट्रिक्स में वो चीज़ें. दूसरी बात अवेयरनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं है. जैसे हम अडल्ट्स के लिए तो नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सारी चीज़ लोगों को कंसल्ट करते हैं, बट पीडियाट्रिक्स के लिए भी हर किसी में वो अवेयरनेस नहीं है कि पहली बात तो लोग पीडियाट्रिशियन के पास ही नहीं जाते, जनरल फिजिशियंस के पास आज भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों को दिखा रहे हैं. तो पीडियाट्रिशियन के बाद ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया कि आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, या पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी पर्सन के पास जा रहे हो. सो वो अवेयरनेस भी उतनी नहीं है. So that is also there, but yes, you have so many options available. That is again a very beautiful thing about pediatrics कि you can diversify. आप जो चाहते हो वो कर सकते हो. तो मैम अगर आपको रेट करने हो सारे सुपर स्पेशलिटीज फ्रॉम द स्पेशलिटी विद द मोस्ट पोटेंशियल टू द लीस्ट वन इन द करंट टाइम्स, आप कैसे रेट करेंगी पीडियाट्रिक स्पेशलिटीज? पीडियाट्रिक स्पेशलिटीज. ओके, सो सर आई थिंक मोस्ट पोटेंशियल की अगर बात करें, आई सी नियोनेटोलॉजी एज टॉप, बिकॉज चाइल्ड बर्थ्स होते रहेंगे, नियोनेटोलॉजी की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है. बट ऑब्वियसली हेक्टिक रहेगा एंड ऑल दैट इज देयर, बट अ गुड नियोनेटोलॉजिस्ट विल, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी. आफ्टर नियोनेटोलॉजी आई थिंक पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक बच्चे जो हैं तो उनके लिए रियली यू नीड स्पेशलाइज स्किल सेट. PICU इंटेंसिविस्ट जो होते हैं, मतलब उनका डेफिनेटली द हैंड्स ऑन स्किल्स, द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, द वर्कअप स्किल्स, सो दे आर रियली डिफरेंट, मतलब बहुत बेटर होने की ज़रूरत है. तो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. देन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, सर इतने सारे कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज आर देयर एंड हर जगह आप देखोगे वेटिंग लिस्ट चल रही है. सो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अगेन आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी इन डिमांड वाली स्पेशलिटी. देन वुड बी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले, ये सब भी काफ़ी कॉमन है बच्चों में. सो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी वुड बी देयर. उसके बाद सर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी एंड बाकी सारे स्पेशल पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी आ सकते हैं. जेनेटिक्स आई बिलीव विल कम इन अ बिग वे. अब हर चीज़ में आप जेनेटिक्स, मतलब इट इज़ सच अ क्रॉस कटिंग स्पेशलिटी. मतलब एंटीनेटल पीरियड, जब प्रेगनेंसी में आप बेबी जो अंदर फीटस है उससे लेके इवन ओल्ड एज तक, मतलब जेनेटिक्स तो हर जगह आजकल बिग वे में, डायग्नोसिस में भी, थेराप्यूटिक्स में भी, प्रेडिक्शन ऑफ रिस्क में भी, काउंसलिंग में भी, हर चीज़ में. सो जेनेटिक्स आई बिलीव अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड in times to come it is going to come up much up in the ladder. So what's your frank opinion on this thing? I know आपने बताया मुझे ये ऑलरेडी, बट आज के जो JRs हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगी कि डूइंग एन बेसिकली DM, इज इट अ मस्ट और नॉट? सब मस्ट तो अभी भी नहीं है पीडियाट्रिक्स में. यही खास बात है कि मस्ट नहीं है. आप MD पीडियाट्रिक्स करके भी यू कैन डू रियली गुड. बट देन अगेन जैसे मैंने बोला कि अगर आप कैपिटल सिटी, कॉर्पोरेट सिटी में रह के, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़ के अगर आप वैसे टाइप की प्रैक्टिस चाहते हो, फॉर दैट येस यू नीड अ DM या फिर यू नीड सम फेलोशिप, देन यू विल हैव एन एज ओवर द अदर्स. क्योंकि जनरल पीडियाट्रिक्स वाले तो एज आई सेड कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर आपको मेट्रोज में सेटल होना है, देन येस इट इज़ अ मस्ट. एंड आप PG करते ही कर लो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट. डोंट पोस्टपोन इट. इफ़ यू रियली वांट टू सेटल इन अ बिग सिटी और अ मेट्रो, जस्ट डू इट देन एंड देयर. एंड अगर आपकी है कि आप यू आर ओके विद अ सेकेंड टियर सिटी और अ थर्ड टियर सिटी और योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड ऑल, तो फिर इवन डूइंग अ MD पीडियाट्रिक्स अच्छे से इज़ गुड इनफ. एंड ऑब्वियसली उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी कर लो तो उससे थोड़ा और ज़्यादा आपके स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस ये सारा इंप्रूव हो जाता है. सो आई थिंक इवन दैट विल सफाइस. मैम, वेयर डू यू सी दिस ब्रांच इन द नेक्स्ट 10 years? सर द ब्रांच डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. जैसे कि मैं बताया, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, द मोस्ट, मतलब पॉपुलेशन की कमी नहीं है और बढ़ रही है पॉपुलेशन. सो पेशेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी देयर इन अ ह्यूज नंबर. सो द ब्रांच ऑब्वियसली इज गोइंग टू सर्वाइव एंड सर्वाइव वेल. बट वही है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी चेंज हो जाती है ना. मतलब आप जहाँ सेटल करना चाहते हो, वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ 10 years डाउन द लाइन, उसके अनुसार ऑब्वियसली द अपॉर्चुनिटीज एंड द थिंग्स माइट चेंज, द डायनामिक्स माइट चेंज. डू यू थिंक AI will affect the branch? नॉट एट ऑल सर. आप एक बच्चे को ह्यूमन, तो AI तो वही करेगा ना जो ह्यूमन कर पाएगा. ह्यूमन ही नहीं कर पाता. कई बार बच्चे को देख के आप नहीं बता पाओगे कि क्या हो रहा है, तो AI तो क्या ही करेगा सर. नो, बिल्कुल नहीं सर.
बिल्कुल नहीं, कहीं से ही लगता नो है आपको स्कोप, कि AI बीच बिल्कुल में नहीं आएगा? सर, कहीं नहीं। चलो गाइज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर आई एवर गॉट ऑन AI कि आ ही नहीं सकता। बट आई एम ग्लैड कि अगर ऐसा होता है दैट ह्यूमन टच इज द वन थिंग विच मेक्स डॉक्टर स्पेशल। बिल्कुल सर, और पीडियाट्रिक्स में तो वो भर भर के चाहिए आपको, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते सर। Okay, गॉड okay, का ma'am, सर। give me the top 5 institutes for MD pediatrics and DNB pediatrics in our country. Apart from the central institutes, I know वो बहुत अच्छे हैं, but apart from the सर मेरा centrals. तो बायस है सर, मतलब एम्स मैं तो बोलूँगी सर, एनी वन गेट्स अ चांस, एम्स या फिर पीजीआई चंडीगढ़ या जिपमर, कुछ भी करने को मिल रहा है, एमबीबीएस, एमडी, सम शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वरशिप, सीनियर रेजिडेंसी, कुछ भी मिल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करो। अब इनको छोड़ मतलब के हैव टॉप दैट 5 एक्सपीरियंस। बताओ। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस देन सर, बट टॉप 5 की अगर हम बात करें तो एमडी के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इज़ गुड, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, मतलब दिल्ली के कॉलेजेस, ऑल द कॉलेजेस आई वुड से, मतलब दे आर वेरी गुड। लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद, इवन UCMS, RML, सफदरजंग, all of them are very good. They have good patient load and good set of faculty, so they are very good. उसके अलावा सर अगर हम बात करें सो डाउन साउथ देर आर लॉट ऑफ गुड, CMC वेल्लोर इज़ वेरी वेल नोन, बहुत अच्छा वहाँ का है सर। उसके अलावा चेन्नई में अच्छे कॉलेजेस है, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, देन मुंबई में देर आर सम वेरी गुड कॉलेजेस। सो आई थिंक पीडियाट्रिक्स, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में यू विल फाइंड दैट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ द मेडिकल कॉलेज। पीडियाट्रिशियंस मतलब समहाउ सर, मतलब इवन एम्स की भी अगर मैं बात करूँ, बेस्ट डिपार्टमेंट अगर होगा तो आई वुड से पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है। और सो DNB के लिए किसको मानोगे आप? डीएनबी सर वही है कि अब सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर ऑफरिंग डीएनबी, सो डीएनबी में अगेन आई थिंक आप जो लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हो, सो मुझे तो ज़्यादा ऑब्वियसली दिल्ली के कॉलेजेस का पता है सर, तो गंगाराम इज़ डूइंग अ गुड जॉब, गंगाराम, अपोलो, फिर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैदराबाद इज़ गोइंग डूइंग अ गुड जॉब। सो मतलब आपको वो देखना होगा कि आप किस लेवल ऑफ केयर दैट दे आर प्रोवाइडिंग, द पेशेंट लोड दैट इज़ देयर, फैकल्टी जो वहाँ पे है उनकी कैसे टाइप की स्ट्रेंथ्स है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर जिसमें थोड़े थोड़े सीट्स है, बट देन दे आर डूइंग गुड क्वालिटी वर्क। तो कैसे जज करे एक कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को या एक इंस्टीट्यूट को? अगर थोड़ा पैरामीटर्स बताएं हमें तो। सर आई थिंक पेशेंट लोड, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल देख रहा है, दैट कितना होना चाहिए हैज़ मैम? सर ऐसे नंबर्स में कहना तो मुश्किल है, बट देन अ गुड ओपीडी लोड आई वुड से एटलीस्ट 100 पेशेंट्स पर डे, पर डे? है ना, मतलब आइडियली तो उतना तो होना चाहिए। इंडोर की अगर हम बात करें तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कम से कम 30-40 पेशेंट्स तो एडमिटेड होने चाहिए। सो अ गुड फुटफॉल आई थिंक इज़ अ मस्ट, है ना। तो अगर पेशेंट की वैरायटी आपके पास ज़्यादा आ रही, दैट इट सेल्फ इज़ अ टेस्टामेंट, मतलब ऑब्वियसली आपके यहाँ गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, तभी तो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स। बाकी ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा आपका आपका रेजिडेंस कहाँ है, वेयर डू यू वांट टू स्टे, वेयर आर यू कंफर्टेबल स्टेइंग, एंड एक बार जाके विजिट ज़रूर करो आई वुड से, विच एवर प्लेस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड सम कॉलेजेस, सो प्लीज़ गो एंड विजिट देम वंस। तो फिर आपको ना जो वाइब्स आती है, आपको समझ आता है, टॉक टू द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर और हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम देयर, सो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना, इट रियली हेल्प्स यू चूजिंग द राइट कॉलेज फॉर यू। मैम अभी आप जानते हो नीट पीजी काउंसलिंग चल रही है, तो एक क्वेश्चन से बहुत बच्चे जूझ रहे हैं, शुड वी टेक ए लोन टू टेक एन MD pediatric seat in a private college? What's your opinion? सर माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि नहीं सर, मतलब लोन लेके क्यों करना, अनलेस यू आर बिल्कुल ही ऐसे ये हो कि नहीं एमडी पीडियाट्रिक्स के अलावा कुछ करना ही नहीं है एंड यू आर सो पैशनेट अबाउट इट, देन मे बी यू कैन थिंक ऑफ, बट अदरवाइज सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सम ऑफ देम हैव हेफ्टी फीस सर, मतलब आप यू विल पूरे 3 साल मिला के आप 1 CR ऑलमोस्ट खर्च कर दोगे, एंड वंस यू आर टेकिंग अ लोन दैट इज़ ऑलवेज इन द बैक ऑफ योर माइंड कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मतलब इससे ज़्यादा ही कमाना है ऑब्वियसली, कि ये लोन तो चुकाना है, उसके बाद अपने अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी तो चाहिए ना सर। तो लोन लेके करना, आई डोंट थिंक सर इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज फिर वो आपके दिमाग में ना एक लाइबिलिटी की तरह चलते रहता है, इट विल क्रिएट अ मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, यू माइट नॉट बी एबल टू एन्जॉय वर्किंग एंड लर्निंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट सो मच, एंड वो अंदर से जो आने वाली चीज़ सर, पैसे सबको चाहिए, है ना, मतलब उसके बिना ऑब्वियसली दैट इज़ द बिटर ट्रूथ कि नहीं चल सकता काम, वी ऑल नो दैट। बट अब आप सोच ही यही रहे हो कि आपने स्टार्ट ही माइनस से किया है, मतलब अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, उठ रहे हो, इट इज़ स्टिल ईजियर। आप माइनस से स्टार्ट कर रहे हो, आपने अपने लिए लोन लिया और फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आपको अपने पेरेंट्स को भी अगर सपोर्ट करना है और भी फैमिली की आपकी नीड्स हैं, प्लस आपका लोन है जो चल रहा है, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया सर। A genuine answer, ma'am. It's a very genuine answer.
आई थिंक सर, मतलब क्योंकि अगर ठीक है आपके पास है ऐसे इतने पैसे हैं, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं एंड ऑल, आई थिंक तो अलग बात है, बट अदरवाइज सर आई विल नॉट वांट टू टेक अ लोन एंड डू दैट. इतना बड़ा लोन तो नहीं सर. तो मैम चलो आपसे द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्टिगेटिंग क्वेश्चंस ऑफ आवर पॉडकास्ट है वो पूछता हूँ, लेकिन दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. हाउ मच डज अ पीडियाट्रिशियन अर्न इन आवर कंट्री, लाइक इमीडिएटली आफ्टर एसआरशिप, 10 years down the line, 20 years down the line? सो सर इमीडिएटली आफ्टर एसआरशिप की अगर हम बात करें तो दे विल, इफ़ दे वांट टू वर्क इन अ मेडिकल कॉलेज काइंड ऑफ अ सेटअप, सो दे वुड अर्न समवेयर बिटवीन 1.5 to 2 lakhs पर मंथ, ऐसे कर लेंगे. एंड इफ दे हैव द दैट मच टाइम एंड एनर्जी एंड दे डू अ प्राइवेट प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दैट, शाम में आके अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सो देन दे कैन मेक अनदर 1.5 to 2 lakhs आउट ऑफ दैट पर मंथ में भी. बट एकदम स्टार्टिंग में नहीं, ऑब्वियसली फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन. And इसके once you have your own setup, no sir, once your name and fame becomes, so obviously it will keep on compounding. So even maybe 10 years down the line you can earn 5 to 10 times of this. And मतलब it knows no limit. मतलब there are pediatricians जिन्होंने अपना हॉस्पिटल बना लिया है and लोग दूर दूर से उनके नाम से आते हैं. So obviously मतलब the branch is not going to give you the money you have to earn. And अगर आप if you're good at your work speaks for yourself. So sky is the limit, sir. Ma'am, एक question of again every young pediatrician is going through कि how soon should we start our own private practice after doing our MD? What's your suggestion? सर इफ़ द विजन इज़ कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है, इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, तो आई वुड से आप MD ख़त्म करने के नेक्स्ट डे शुरू कर लो. मतलब बिकॉज प्राइवेट प्रैक्टिस इज समथिंग दैट विल टेक टाइम टू बिल्ड अप. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, नॉट इन अ मंथ. It will take at least a few months, a year, few years for your patient base to start developing, the word of mouth to go, and how nicely you're interacting with them, the trust and confidence that is building, and थोड़ा सा publicize भी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कर रहे हो, it will take time. तो you should, the earlier you start, the better it is, I would say. अगर आप श्योर हो कि आपको वही करना है. Shouldn't there be a learning process जहाँ पे आप किसी के साथ पहले थोड़ा टाइम अंडर काम कर लो, then start your own practice? सो सर MD में आप बेसिकली MD में इसीलिए अच्छे से काम करना है, इसीलिए ग्रिल करना है. जितना ज़्यादा आप काम करो ना सर, जितना ज़्यादा, मतलब आई वुड से कि आप किसी और के लिए नहीं काम कर रहे हो, मतलब इट इज़ योर ओन, आप अपने अकाउंट पे डाल रहे हो वो सारा, मतलब जितना ज़्यादा आप कर लो. सो आई थिंक अगर आपने MD में बहुत अच्छे से सारा काम किया है तो MD के बाद आप कॉन्फिडेंटली चाहो तो 1 year सीनियर रेजिडेंसी कर लो एक ऐसे कोई दूसरे सेंटर से, सो एक और पर्सपेक्टिव आपको मिल जाए, है ना. और उसके बाद आई थिंक वो करने के बाद इन मोस्ट केसेस यू वुड बी कॉम्पिटेंट इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि आप हैंडल कर लोगे सब कुछ. तो उतना करके आई थिंक कर सकते हैं सर. तो मैम आपकी क्या सजेशन रहेगी टू ऑल द यंग एस्पिरेंट्स जो टीचर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, या दे जस्ट वांट टू बिकम अ टीचर फॉर द पैशन ऑफ इट, कैसे उनको एक शुरुआत करनी चाहिए? सो इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग, सो आपको तो मतलब जैसे कविता को अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक कवि को अपॉर्चुनिटी चाहिए ना अपनी कविता सुनाने के लिए, एक टीचर को अपॉर्चुनिटी चाहिए पढ़ाने के लिए. जहाँ मिल जाए आपको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विलिंग टू लर्न, आप शुरू हो जाओ, आप पढ़ाओ. मतलब मुझे याद है मैं जैसे कई बार इमरजेंसी ड्यूटीज़ में होती थी, मेरे साथ जो इंटर्न बैठा होता था, इंटर्न्स तो PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, तो मतलब अगर पेशेंट नहीं है, बीच बीच में टाइम्स होता था जब पेशेंट्स कम होते थे, सो आई यूज़ टू स्टार्ट टीचिंग देम अ टॉपिक एंड ऑल. तो आप ऐसे आप मतलब जहाँ पे भी आपको मौका मिल रहा है, यू पॉलिश योर स्किल्स, एंड whenever there's a opportunity, सर opportunities सबको मिलते हैं, we just have to keep looking for them. तो be prepared, be ready, and if you get an opportunity, so I think just take it with open hands and you start doing it. थैंक यू सो मच मैम. बट हमारा पॉडकास्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है. आई डू हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू. बहुत सिंपल मैम, 2 rules हैं. यू हैव टू बी सुपर स्पॉन्टेनियस एंड सुपर ट्रूथफुल. Okay, ठीक है मैम, रेडी हैं आप? परफेक्ट. मैम, वन ऐप यू यूज द मोस्ट? So Myntra, I like shopping a lot. ओके, जेन्युइन था बिल्कुल. मैम, दिल्ली और कोलकाता, व्हाट्स योर फर्स्ट लव? So Delhi, मतलब दिल्ली को any day, मतलब even though I'm born and brought up in Kolkata, but the professionalism, the love, but I Delhi now, sir. कुछ मिस करते हो आप कोलकाता का? मिस तो करती हूँ, ऑब्वियसली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, सो कोलकाता की तो मतलब द लाइक एवरीथिंग, कोलकाता के लोग ना बड़े फ्रेंडली एंड मतलब बहुत ही
बहुत ही एक दूसरे के लिए ना, दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी आउट गोइंग फॉर ईच अदर, जो कि दिल्ली में थोड़ा लैकिंग है. बट द ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म एंड द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग आई वुड से, तो मतलब दिल्ली डेफिनेटली इज, आई वुड choose over Kolkata now any day. But then yes, there are things which I miss from Kolkata. Yes. What did you do with your first internship salary? सर हमें 6,100 मिलता था उस समय पर मंथ. तो द फर्स्ट सैलरी आई गेव इट टू माई पेरेंट्स कि आपको जो मैंने आप इससे प्लीज़ ले लो. तो दे डिपॉजिटेड इन माई अकाउंट ओनली, मेरे बैंक अकाउंट में उन्होंने डाल दिया. Okay, rank these for yourself: research, teaching, clinical practice, family time, me time. सो फैमिली टाइम कम्स फर्स्ट. आई थिंक हर जगह आप रिप्लेसेबल हो, अपने वर्क पे रिप्लेसेबल हो, कोई हॉस्पिटल नहीं रुकेगा आपके बिना, बट योर फैमिली इज़ वन प्लेस वेयर यू आर नॉट रिप्लेसेबल. तो फैमिली टाइम वुड कम फर्स्ट, देन आई वुड से टीचिंग, देन क्लिनिकल वर्क, देन मी टाइम, एंड उसके बाद जो टाइम बचा रिसर्च. अभी भी आप रिसर्च में हाँ जी सर, time देते मतलब पेपर पब्लिकेशन, मतलब आप अभी भी जैसे वी गाइड एमडी स्टूडेंट्स को थीसिस करने में, एंड अपनी और स्टडीज़ भी करते हैं, एंड रिसर्च पब्लिकेशंस आप नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में कर सकते हो. सो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, विच इज़ ऑब्वियसली हर चीज़ एविडेंस पे टिकी है, आप उसी से ही सीखते हो, आगे बढ़ते हो. तो रिसर्च आई थिंक इज़ डेफिनेटली, एंड थोड़ा सा और डेडिकेटेड टाइम इसके लिए मिलना चाहिए एंड प्रमोट होना चाहिए. बट देन ऑब्वियसली विद सो मेनी थिंग्स टू डू, इट कम्स नीचे लिस्ट में, बट देन इट इज़ डेफिनेटली देयर. Ma'am, one thing you refuse to compromise in your life. सर एथिक्स, आई थिंक मतलब एथिक्स वेरेवर, मतलब आप वर्क एथिक्स हो, फैमिली में हो, अपनी ओन एथिकल वैल्यूज़ हो, आई थिंक उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. मैम, अगर आप आज अपने यूजी डेज में वापस चले जाओ and you could do one thing that you never even dreamt of, what would that thing be? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. सर मैंने तो यूजी डेज में, मैंने बोला वैसे एक भी मूवी नहीं देखी. आई वुड वांट टू थोड़ा सा, मतलब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बट आई थिंक वी शुड एन्जॉय एंड मतलब वो वाला टाइम भी वापस नहीं आएगा. सो आई थिंक वी शुड टेक टाइम आउट, गिव आवरसेल्व्स ब्रेक, मे बी गो वॉच अ मूवी या फिर हैंग आउट विद फ्रेंड्स. वो वाला पार्ट भी थोड़ा करना चाहिए, विच आई मिस्ड आउट अपॉन इन द फर्स्ट 3-4 years, जो मुझे लगता है कि मे बी थोड़ा सा टाइम एन्जॉयमेंट का और हॉबीज़ के लिए भी निकालना चाहिए था. Very true, ma'am. Okay, one thing that instantly lifts your mood. गुड फूड. What's your favorite food? छोले भटूरे. अच्छा, अब आप दिल्ली वाले हो चुके हो. हो चुके सर. Okay, your new year resolution. सर टू मेक सम मोर टाइम फॉर माई सेल्फ, थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा एक्सरसाइज, हॉबी, थोड़ा सा और टाइम अपने लिए निकालना है सर. Happiest moment of your life. सर व्हेन बोथ माई किड्स वर बॉर्न, मतलब दोनों ही मोमेंट्स आई कैन नॉट फॉरगेट. मतलब दे आर रियली, मतलब ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड. मतलब दैट फीलिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. Thank you so much, ma'am, for such an insightful discussion. It was literally amazing, and I'm just honored to have you as a guest on our show. सर इट वॉज अ रियली वंडरफुल टाइम एंड सो मेनी, मतलब अपने बारे में इतना कभी नहीं सोचा, कि इतना कभी नहीं बोला. थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी हियर. इट हैज़ रियली बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर. Thank you so much, ma'am. And thank you so much, everyone, for watching today's show. I believe pediatrics has been dissected to the molecular level. Ma'am has given you all the insights about AIIMS, the toxicity, the residency, whether it's good, whether it's bad, pediatrics, who should take it, who's best suited for the branch, and the realities of pediatrics. Thank you so much. And as always, do not forget to like, share, and subscribe. Thank you, and God bless you.